Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. This is Deepen Singh Mundela, Associate Professor, Department of Pharmacy. I am going to deliver my lecture on prescription. So let's see the definition of prescription. Prescription is a written order from registered medical practitioner such as physician, dentist, veterinary to the pharmacist to compound and dispense of a specific medication for the patient. मतलब प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटन ऑर्डर होता है जो फिजिशियन या डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट ड्रग को कलेक्ट करता है और कंपाउंड कर देता है पेशेंट के लिए। Thus we can say prescription is a media for providing treatment to the patient through the combined skill of both physician as well as pharmacist. हम कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है फिजिशियन और फार्मासिस्ट दोनों की क्षमताओं के आधार पर। प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली written in English language but frequently used abbreviation and Latin word to save the time. प्रिस्क्रिप्शन को सामान्य तौर पर अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है लेकिन समय को बचाने के लिए इसमें एब्रिविएशन और लैटिन शब्द का उपयोग किया जाता है। Now what does prescription include? So we can say prescription include information regarding patient, regarding pharmacist, regarding direction for the patient. Now say parts of prescription. So there are many parts of prescription. They are as follows: date, name, age, sex and address of the patient, superscription, inscription, subscription, signature, renewal instruction, signature, address and registration number of the prescriber. So let's see one by one. First part of the prescription order is date. What is the need of date in the writing of prescription? So we can say every prescription must bear date on which particular medicine are prescribed. This helps pharmacist to keep day by day patient record and also avoid misuse of narcotic and other habit forming drugs containing prescription by the patient. Now let's see name, age, sex and address of the patient. What is the need of name, age, sex and address of the patient in the writing of prescription? Let's see. Name. Name serve special or particular identity of the patient. Same here. Is special care should be taken in pediatric as well as geriatric patient because of metabolic rate. एज में हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है बच्चों में और ओल्ड पेशेंट में। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही कम होता है। सेम सेक्स और जेंडर ऑफ द पेशेंट प्ले मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल in the prescription because dose of drug may also vary based on the gender and patient. Their ability to metabolize response toward drug may vary in cases.
So we can say female require lesser amount as compared to male. Why? Because the excretion rate is different in male and female. Now every prescription order must bear address of the patient. Now let's see, next part of the prescription order is superscription. It is represented by the symbol Rx, and Rx is generally written before the writing of the medicine. It is considered that Rx is originated from the sign of Jupiter or god of healing. So in olden days, prescriber or physician pray to God for quick recovery of the patient, and it is a abbreviation or Latin word of receive, which means you take. मतलब हम कह सकते हैं कि जो सुपरस्क्रिप्शन है यह प्रिस्क्रिप्शन का ऐसा पार्ट है जिसको RX से रिप्रेजेंट किया जाता है, और RX एक लैटिन भाषा का शब्द है, रिसीव जिसका मतलब होता है आप लीजिए। और पुराने समय में ऐसी मान्यता थी कि जितने भी देवी देवता हैं सभी का निवास जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह पर होता है, तो जो डॉक्टर होता है या प्रिस्क्राइबर होता है वह ईश्वर से प्रेयर कहता है, हे प्रभु मेरे द्वारा जो मेडिसिन लिखी जा रही है या प्रिस्क्राइब की जा रही है उससे मेरे पेशेंट को यथाशीघ्र ठीक और सही कर देना। Now let's see, next part of the prescription order is inscription. This is the main part of the prescription order which contain name and quantity of the medication. The name of each ingredient is written on a separate line along with its quantity. Inscription प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का एक मुख्य भाग होता है जिसमें ड्रग की मात्रा और क्वांटिटी लिखी हुई होती है। इसमें जो भी ड्रग लिखी जाती है वही एक सेपरेट लाइन में लिखते हैं क्वांटिटी के साथ। जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं उसमें बेस, एडजुवेंट और व्हीकल ये तीन चीजों से मिलकर बनती है। तो फर्स्ट देखते हैं बेस। बेस क्या है? एक active medicament. Base is a active medicament which have a therapeutically active, and adjuvant is a substance added to increase action of a medicament and increase palatability of the drug. Same here, vehicle is a substance used to dissolve a medicament. Now let's see, next part of the prescription order is subscription. This comprises the direction to the pharmacist regarding compounding and dispensing of the medicament. सुपरस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का एक ऐसा भाग होता है जिसमें डायरेक्शन दिए जाते हैं फार्मासिस्ट को कि ड्रग को कंपाउंड करें और पेशेंट को डिस्पेंस कर दें। Now next part of the prescription order is signature. It consists of a direction to the patient to be given administration of a drug. मतलब हम कह सकते हैं सिग्नेचर प्रिस्क्रिप्शन का एक ऐसा भाग होता है जिसमें डायरेक्शन निर्देश होते हैं पेशेंट के लिए कि आपको ड्रग कब कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी इसमें इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स हाउ मैनी टाइम इट मे बी रिन्यूड। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में यह होता है कि पेशेंट को कब बुलाया जाए, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, ये सब कुछ
रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। सो वी कैन से signature, address and registration number of the prescriber must be written on the prescription along with its date and sign। मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसमें सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर उपस्थित होना ही चाहिए, साथ में उसके सिग्नेचर होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर भी बहुत जरूरी है। नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। So this is the format of prescription contain Ratna Nursing Home, name of the hospital. First part of the prescription order is date. Second part of the prescription order is name, age, sex and address of the patient. And third part of prescription order is superscription. RX represent superscription. And this is the medicament. These all a part of the inscription. And make allocation, this is a part of the subscription. And this is a part of the signature. Next refill means renewal instruction. And last registration number and address of the prescriber. See here. Now I am going to discuss about various Latin words and abbreviation which are frequently used in prescription. First, tab means tabula, that means tablet. Second, cap, capsula, it means capsule. Teaspoonful means 5 ml. Dessert spoonful मतलब 8 ml. Table spoonful means 15 ml. Ex aqua means with water. HS hora somni, that means at bedtime. SOS sigh of pursuit when required. Same here. OD means once a day. BD twice a day. TID Tarendai 3 times in a day. QD 4 times in a day. AC anti-sebos means before meal. BC means after meal. AC means inter-sebos, that means between meal. Now I am going to discuss about handling of the prescription. Let's see. The following procedure or steps should be adopted by the pharmacist while handling the prescription. They are receiving, reading and checking, collecting and weighing the material, compounding and labeling or packaging. So let's see one by one. Receiving. Prescription should be received by pharmacist himself from the patient, and on the receiving of the prescription, pharmacist should not change his facial expression, which give impression he is confused or surprised after seeing the prescription. रिसीविंग में क्या ध्यान रखना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे फार्मासिस्ट स्वयं के द्वारा ही रिसीव किया जाए पेशेंट के द्वारा, और जब आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करें तो उस समय अपने फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के आपको हाव भाव चेंज नहीं करने हैं, वरना जो पेशेंट होगा वो समझेगा कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, आप कन्फ्यूज हैं और जो आप दवा दे रहे हैं उस पर उसे ट्रस्ट नहीं रहेगा. ओके. Now next is reading and checking. On the receiving of prescription order, pharmacist should check OPD slip, nursing home hospital format and doctor's pad. It is written in proper format
or not? Prescription should always be screened behind the counter. If any ambiguous abbreviation occurs or any difficulty occurs for the understanding of a prescription order, so pharmacist should consult our senior pharmacist. But remember that he should know about patient. मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन को चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप कि डॉक्टर के पेड पर है या नहीं है, नर्सिंग होम का फॉर्मेट है या हॉस्पिटल का फॉर्मेट है, उस पर है कि नहीं है। और जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो जो आपका काउंटर होता है ना उसके अंदर से पढ़ना है। और यदि आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को पढ़ने में कोई परेशानी आती है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई लैटिन वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करें, जो आपका सीनियर फार्मासिस्ट है उससे आप टेलीफोनिकली पूछ लें या साइड में जाके पूछ लें। लेकिन ये सब पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। Now, what to check in prescription? Let's see. Error in dose, wrong dose of dosage form, contraindication drug, synergist, antagonistic drug, and drug interaction. So these are things should be checked by the pharmacist. Now, collecting and weighing the material. So before the compounding of prescription, all the material required collected on the left hand side of the billing. After the compounding of material, it should be shifted right hand side of the balance. मतलब जब भी आप कोई भी मटेरियल को कंपाउंड कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो आपकी बैलेंस मशीन होती है उसके आप पहले लेफ्ट हैंड साइड रखें। जैसे ही वो एक एक करके वे करते जाएं तो राइट हैंड साइड आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। Next, compounding, labeling and packaging. Compounding, labeling and packaging should always be carried out in neat and clean place. मेरे कहने का मतलब है जितना भी आप ड्रग को कंपाउंड कर रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं या पैक कर रहे हैं, तो उसको साफ सुथरी जगह पर करना है आपको। ऐसा नहीं कहीं डस्ट पड़ी हो, कहीं पर मिट्टी हो या कहीं पर पानी पड़ा हुआ है वहीं पे आप पैकिंग करने लग जाएं या लेबलिंग करने लग जाएं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। Label should contain the required suggestion, direction to the patient. जो आप लेवल पेस्ट कर रहे हैं उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि डायरेक्शन पेशेंट के लिए है या फार्मासिस्ट के लिए है या उसकी सेल्फ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा कुछ उसमें कितने MRP है, सब चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। Now let's see sources of errors in prescription. How many errors might be present in the writing of prescription? Let's see. First is abbreviation, name of drug, strength of preparation, dosage form of the drug prescribed. So I am going to discuss about first is abbreviation. Pharmacist should not guess any ambiguous abbreviation. एब्रिविएशन मतलब होता है संक्षिप्त रूप। फार्मासिस्ट को कभी भी जो संक्षिप्त रूप है उनका अनुमान नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? फॉर एग्जाम्पल, इफ फार्मासिस्ट डिस्पेंस एक्रोमाइसिन, but intention of the prescriber is to dispense एक्रोस्टेटिन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां लिखा हुआ है एक्रो, तो एक्रो को फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस किया एक्रोमाइसिन, तो ये गलत हो जाएगा। उसे क्या देना था?
जो प्रिस्क्राइबर है, डॉक्टर है, उसे डिस्पेंस करना था एक्रोस्टेटिन, लेकिन फार्मासिस्ट ने क्या दे दिया? एक्रोमाइसिन। दिस में लीड टू सीरियस इंजरी फॉर द पेशेंट। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है एब्रीविएशन या लैटिन वर्ड्स, उनका हमें अनुमान ही लगाना है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ ड्रग। सर्टेन ड्रग्स whose name look or sound like those of other drug। बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो देखने में और सुनने में एक सी लगती हैं, लेकिन वो ड्रग का कंटेंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, एल्थ्रोसिन, एल्ट्रोक्सिन। अब प्रिस्क्राइबर है, उसने लिखा हुआ है एल्थ्रोसिन, आपने दे दिया एल्ट्रोक्सिन, तो क्या होगा? एल्थ्रोसिन एक एंटीबायोटिक है, जबकि एल्ट्रोक्सिन क्या है? एंटी थायराइड ड्रग। तो यह क्या होगा? जो पेशेंट है उस पर सीरियस इफेक्ट पड़ेगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा उसका। ड्रग एक जो इंटेंशन है प्रिस्क्राइबर का, वो ना देखिए दूसरा ही प्रभाव आ जाएगा, तो यह क्या है? गलत हो सकता है। ये कमियां हैं जो प्रिस्क्राइबर के द्वारा इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। Let's see strength of the preparation. Prescriber should be understandable or clearly stated all ingredient which are writing on the prescription। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिया, कोई भी स्ट्रेंथ ड्रग की नहीं उसने मेंशन किया, जैसे 50 ml या 100 ml या 100 mg, ऐसा कुछ भी डॉक्टर नहीं लिखा, तो इससे क्या होगा? जो भी प्रिस्क्राइबर होगा, जो पेशेंट होगा, उसे दवा लेने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, फार्मासिस्ट समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रेंथ दी नहीं गई है। मतलब डॉक्टर ने लिख दिया 500 पैरासीटामोल। अब जो ओल्ड पेशेंट हैं और जो चाइल्ड हैं, उनको तो कम मात्रा में ड्रग चाहिए, तो उनको हम साइरप फॉर्म में ही दे सकते हैं, ना कि टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में। इसी तरीके से डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब। मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट मोर देन 1 डोजेस फॉर्म। टैबलेट भी हो सकता, कैप्सूल भी हो सकता है, साइरप भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है। तो ये भी डॉक्टर को जो डोजेस फॉर्म है वो पर्टिकुलर ही प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा ये। नाउ नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ एरर मे बी डोज। हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस बाय द प्रिस्क्राइबर और फिजिशियन। कोई भी डॉक्टर होता है उसके द्वारा डोज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, कम डोज देना है या ज़्यादा डोज देना है। ठीक है, यदि आप डोज पर फोकस नहीं करते हैं तो यह पेशेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। सेम इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियरली गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट को हम किस रूट से ड्रग को दे रहे हैं, इंट्रावेनियस, इंट्रामस्कुलर, ओरली,
टॉपिकली, इन सब का प्रॉपर तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, इनकम्पेटिबिलिटीज। सर्टेन एंटीबायोटिक्स शुड बी नॉट गिवन विथ मील, इट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। कुछ निश्चित ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हमें खाने के साथ देना है और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खाली पेट देना है। इन सब का प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।